بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں پنجاب حکومت کا مکمل لاک ڈاؤن پر غور۔ راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان اور گجرات میں مکمل لاک ڈاؤن پر غور۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال پر مکمل لاک ڈاؤن پر غور کیا جا رہا ہے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 19% کی حد پار کر گئی۔ اسپتالوں پر بھی کورونا کے مریضوں کا شدید دباؤ بڑھ گیا۔ حکومت NCOC کے اجلاس سے منظوری لے گی، جبکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے 2 ہفتے بھی مکمل ہو چکے۔ آج اہم اجلاس میں بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ پنجاب حکومت کا مکمل لاک ڈاؤن پر غور۔ مکمل لاک ڈاؤن پر غور کے لیے مشاورت۔ کورونا کی بگڑتی صورتحال پر مکمل لاک ڈاؤن پر غور کیا جائے گا، جبکہ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 19% کی حد پار کر چکی ہے۔ اسپتالوں پر بھی کورونا کے مریضوں کا شدید دباؤ بڑھ چکا ہے۔ حکومت NCOC کے اجلاس میں یہ منظوری لے گی، جبکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کے 2 ہفتے بھی مکمل ہو چکے۔ آج اہم اجلاس میں بڑے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آخری روز بھی مکمل، جبکہ صوبائی وزیر صحت کی جانب سے تمام ڈویژنز کے کمشنر اور ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس طلب کیا گیا۔ وزیر صنعت اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق کی جانب سے شرکت۔ کورونا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ NCOC کو مزید 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کی سفارش۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز، بیڈز میں فوری اضافے کی ہدایت، جبکہ حجام شاپس کو رات 8 بجے تک کا وقت دینے کی تجویز پر غور کیا گیا ہے۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن کا آج آخری روز تھا۔ صوبائی وزیر صحت کی زیر صدارت تمام ڈویژنز کے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کا اجلاس طلب کیا گیا۔ وزیر صنعت اسلم اقبال اور چیف سیکرٹری جواد رفیق نے بھی شرکت کی۔ کورونا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ NCOC کو مزید 14 روز کے لیے لاک ڈاؤن کی سفارش کی۔ اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز، بیڈز میں فوری اضافے کی ہدایت کی گئی۔ حجام شاپس کو رات 8 بجے تک کا وقت دینے کی تجویز پر غور۔ کورونا کے بڑھتے وار جاری ہیں۔ ڈویژن بھر میں 8 اموات ہو چکی ہیں۔ 264 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ فیصل آباد میں 192 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ جھنگ میں 31 اور چنیوٹ میں 21 افراد کی کورونا رپورٹ مثبت آئی۔ ٹوبہ میں 20 مریضوں کا اضافہ ہوا۔ کورونا کے بڑھتے وار ڈویژن بھر میں 8 اموات ہو چکی۔ 264 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ فیصل آباد میں 192 افراد میں وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جھنگ میں 31 اور چنیوٹ میں 21 افراد کی کورونا رپورٹ مثبت آئی۔ ٹوبہ میں 20 کورونا مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ احساس کے زیر اہتمام کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کا فیصل آباد میں بھی افتتاح کر دیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے، جبکہ صوبائی وزراء، پارلیمنٹیرینز، سیلانی ٹرسٹ شفیق میانداد اور ڈپٹی کمشنر سمیت دیگر کی جانب سے شرکت کی گئی۔ رپورٹ کریں گے رمضان مرزا۔ فیصل آباد ضلع کونسل چوک میں پروگرام کوئی بھوکا نہ سوئے کی افتتاحی تقریب ہوئی، جہاں وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ ویڈیو لنک کانفرنس کے ذریعے پروگرام میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے پروگرام کو ریاست مدینہ کے قیام میں پہلی کڑی قرار دیا۔ ٹرک کچن، جس کے اندر کچن ہوگا، وہ روٹس کے اوپر جائے گا، جو وہ علاقے جدھر سب سے مستحق لوگ ہوتے ہیں، جو پسماندہ علاقے ہیں، تو ان کو وہ ٹرک ان روٹس کے اوپر چلے گا، تو وہ زیادہ ایریا بھی کور کر سکے گا۔ تو آئیڈیا اس کا پیچھے یہ تھا۔ برکت تو اللہ کی آتی ہے، نعمتیں تو اس کی طرف سے آتی ہیں، کوشش انسان کی ہوتی ہے۔ میں یہ چاہتا تھا کہ ہمارے ملک میں جو گورنمنٹ کے اندر لوگ ہوں، جو ہمارے وزیر ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، ان سب کے اندر یہ احساس ہو کہ ان کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے حکومت میں آنے کے بعد، وہ اس طبقے کی ہے جو کہ غریب طبقہ ہے۔ اور یہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں یہ چیز ڈالی لوگوں میں۔ فیصل آباد میں 2 گاڑیوں کے ذریعے ماہ سیام میں روزانہ 1600 فوڈ پیکٹس تقسیم کیے جائیں گے۔ پکے ہوئے کھانے کے پیکٹس مختلف علاقوں میں مقررہ مقامات پر تقسیم ہوں گے۔ ایک روز میں 2 گاڑیاں 2 روٹس کو کور کریں گی۔ سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے افطار کے وقت کھانا تقسیم کیا جائے گا۔ تقریب میں صوبائی وزیر خیال احمد کاسترو، صوبائی وزیر چودھری ظہیر الدین، MPA فردوس رائے، شکیل شاہد اور لطیف نظر بھی شریک ہوئے، جبکہ ڈپٹی کمشنر محمد علی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فضل ربی،
SSP मोहम्मद अफजल भी मौजूद थे। सैलानी ट्रस्टी शफीक मियादाद ने बताया कि सैलानी तमाम अदारों और सियासी जमातों के शाना बिशाना काम कर रहा है। इमरान खान साहब ने इंडस्ट्री पे काम किया, इंडस्ट्री चली, लोगों को रोजगार मिला और लोग अब भूखे नहीं सोना शुरू हुए। अब इंशाल्लाह ताला जो लोग बेचारे खाना नहीं खा सकते थे, हम उनके लिए मोबाइल जो है बस सर्विस का शुरू कर रहे हैं, तो हम चौकों में खड़ा करेंगे ताकि लोग वो भूखा ना सोएं। इससे बड़ा सदका जारिया कोई नहीं है। मैं इमरान खान साहब को मुबारकबाद देती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये वो काम था जो पिछली हुकूमतों ने बिल्कुल गौर नहीं किया था। मौजूदा हुकूमत का बहुत बड़ा ये एक वो तबका जो लोग गरीब तबका है, वो ख़ास तौर पे इस तरह लाइनों में लग के खाना नहीं ले सकते थे। अब जो मोबाइल यूनिट बने हैं ये खुद इलाकों में जाएंगे, घर घर तक जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ अल्लाह ताला वो वक्त लाएगा जब हमारे मुल्क में कोई भूखा नहीं सोएगा। भूखा कोई ना सोए जो एक प्रोग्राम है एहसास के अम्ब्रेला के नीचे गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया, उसके अंदर ये मोबाइल किचन्स का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा किसी गवर्नमेंट ने जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और इसमें बहुत सारे लोग जो लाइन में लग के खाना नहीं ले सकते उनको खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। पहले भी गवर्नमेंटें आई हैं, सैलानी ने हमेशा उनके साथ काम किया है मिलके और आइंदा भी जो भी गवर्नमेंट होगी हमारा एम है, हमारा मकसद है, हमारी नीयत है कि हमेशा जो भी गवर्नमेंट आएगी हम उनके साथ मिलके ये काम करते रहेंगे, ये हमारी नीयत है। दूर दरार से जहाँ मेहनत करने आते हैं, जो खुश हैं और ख़ास तौर पर रमज़ान में इफ्तारी का है और बाद में खाने का है, तो हमें तो जो गवर्नमेंट ने एक लाइन दी है, इंशाल्लाह अगर हमारे तवज्जो से कोई किसी के हम घर तक पहुंचा सकें। करता हूं कि आज इस गवर्नमेंट ने गरीबों के लिए जो काम किया है ये एक बहुत अच्छा इक़दाम है, हम उसकी भरपूर हमायत करते हैं। ये और अल्लाह पाक उनको इस बात का सलाह दे कि जिन्होंने गरीबों के लिए सोचा है। असिस्टेंट कमिश्नर सदर उमर मकबूल ने तकरीब के इंतजामात को मुकम्मल किया, जबकि असिस्टेंट कमिश्नर सिटी सैयद अयूब बुखारी, CEO हेल्थ डॉक्टर बिलाल अहमद भी मौजूद थे। इस मौका पर मुस्तहिक अफराद में खाना तकसीम किया गया। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ रमज़ान मिर्ज़ा, फैसलाबाद। अभी आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से ज़कात का निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर कर दिया गया। यकम रमज़ान से अकाउंट से बैंक ज़कात की रकम खुद ही मिन्हा करना शुरू कर देंगे। हुकूमत की जानिब से रवां साल के लिए ज़कात का निसाब मुकर्रर किया गया है। बैंकों से ज़कात कटौती के लिए निसाब 80,933 रुपये मुकर्रर किया गया है। सेविंग बैंक अकाउंट्स में 80,933 रुपये से ज़ायद रकम पर 2.5% के हिसाब से ज़कात काटी जाएगी, जबकि बैंक ज़कात की रकम मिन्हा करने का यकम रमज़ानुल मुबारक को काम शुरू कर देंगे, जबकि खातादार खुद भी ज़कात की रकम निकलवा कर मुस्तहिक अफराद तक पहुँचा सकेंगे। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत पावर डिवीज़न के दरमियान कंपनीज के लाइन लॉसेज और रिकवरी से मुतालिक मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस से मुआहदा करके वज़ारत पावर डिवीज़न ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज के सामने बड़ा चैलेंज रख दिया है। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को की रिकवरी और लाइन लॉसेस के टारगेट पूरे करना होंगे। रिपोर्ट करेंगे अवैस सलीम। वज़ीर आज़म हाउस और वज़ारत पावर डिवीज़न के दरमियान कंपनीज के लाइन लॉसेस और रिकवरी से मुताल्लिक मुआहदा तय पा गया। वज़ीर आज़म हाउस से मुआहदा करके वज़ारत पावर डिवीज़न ने बिजली की तकसीमकार कंपनीज के सामने बड़ा चैलेंज रख दिया। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को रिकवरी और लाइन लॉसेस के टारगेट पूरे करना होंगे। वज़ारत पावर डिवीज़न ने मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को से रिकवरी और लाइन लॉसेस की रिपोर्ट तलब कर ली। फेस्को जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह की रिकवरी और लाइन लॉसेस की रिपोर्ट पावर डिवीज़न को जमा करवाएगा। मुल्क भर की बिजली की तकसीमकार कंपनी समेत फेस्को को 12 अप्रैल तक वज़ारत पावर डिवीज़न को रिपोर्ट जमा करवाना होगी। फेस्को की जानिब से लाइन लॉसेस और रिकवरी पूरी करने के लिए सार्फिन पर बोझ डाला जाएगा या कोई मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। इसका अंदाजा रिकवरी रिपोर्ट से लगाया जाएगा। कैमरामैन राना दरीस के साथ अवैस अली, फैसलाबाद। गोजा में माह रमज़ान की आमद है। MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। हुकूमत की जानिब से अशियाए खुरोनोश पर दी गई सब्सिडी का जायजा लिया। गोजा में MPA बिलाल असगर वड़ाइच ने यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया और हुकूमत की जानिब से अशिया खुरोनोश पर दी गई सब्सिडी का जायजा लिया। बिलाल असगर वड़ाइच ने कहा कि हुकूमत ने अवाम के लिए माह रमज़ान में बड़े रिलीफ का ऐलान किया। बुनियादी अशिया खुरोनोश पर 50% से ज़ायद तक सब्सिडी दी जा रही है। महंगाई के जिन पर काबू पाने के लिए हुकूमती इक़दामात के असरात भी जल्द सामने आएंगे। रमज़ानुल मुबारक की आमद है। फैसलाबाद में रमज़ान बाजार सज गए। सब्जियां, फल, मशरूबात तो सस्ते भाव पर मुयस्सर, मगर बेशतर बाजारों में रायती चीनी ना पहुंच सकी, जबकि मटन और बीफ के स्टॉल्स भी फ़आल ना किए जा सके। रिपोर्ट करेंगे रमज़ान मिर्ज़ा।
माह सियाम की आमद से कबल ही फैसलाबाद के शहरियों को अशिया खुर्दनोश सस्ते भाव फ्राहम करने के लिए 19 रमजान बाजार फाल हो गए हैं। आटे के 10 किलो का थैला 375 रुपए, जबकि फल सब्जी और सब्ज मसाला जात भी रायती कीमतों पर मिलेंगे, मगर चीनी की फी किलो कीमत 65 रुपए मुकर्रर होने के बावजूद ताहाल मैसर नहीं। चीनी नहीं अभी तक पहुंची, बाकी चीज़ें जो भी हैं उस पर डिस्काउंट है माशाल्लाह ठीक है। और दुकान पे इस कंट्रोल भी ऐसा किया है कि दुकानदार का अखलाक भी मजदूरों के लिए, आवाम के लिए अच्छा है। मैं तमाम इंतज़ामिया से इल्तिजा करूँगा कि जैसे बाकी सारी अशिया यहाँ मौजूद है, मशरूबात हैं, सब्जियाँ हैं, दालें वगैरह हैं, तो नज़र नहीं आ रही तो चीनी नहीं आ रही। लगता है कि अभी चीनी माफिया इनके काबू में नहीं आया। उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह ये भी 1-2 दिन तक यहाँ चीनी पहुँच जाएगी। बाजारों में आटे के ट्रकिंग पॉइंट्स, घी और मशरूबात के स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए हैं, मगर मटन और बीफ के स्टॉल्स अभी फाल नहीं किए जा सके। तहम इंचार्ज मिलत रोड बाजार का कहना था 1 से 2 रोज में चीनी भी मैसर हो जाएगी। दालें, फ्रूट, घी, मशरूबात, चिकन, आटा वगैरह के सारे स्टॉल और करियाने के स्टॉल भी यहाँ पे लग चुके हैं, और चीनी का स्टॉल इंशाल्लाह वो भी उम्मीद है गवर्नमेंट की पॉलिसी के मुताबिक वो भी रमज़ान से पहले शुरू हो जाएगा। रमजान बाजारों में मुफ्त पार्किंग, फर्स्ट एड और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी ड्यूटी पर मौजूद होंगे, जबकि सिविल डिफेंस शहरी तहफ़्फ़ुज़ के लिए बाजारों में मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद अदरीस के साथ रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का बढ़ती महंगाई के खिलाफ हंगामी इजलास। ताजरों ने हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा किया। रिपोर्ट करेंगे फजील अहमद। अंजुमन ताजरान सिटी क्लॉथ बोर्ड फैसलाबाद का बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ हंगामी इजलास मुनक्कद हुआ। इजलास की सदारत सदर सिटी क्लॉथ बोर्ड शेख अमजद अकील और जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख ने की। शेख अमजद अकील ने कहा कि माह रमजान में आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए ताकि मुस्तहिक अफराद आसानी से गुजर बसर कर सकें। सबसे बड़ी परेशानी वाली ये बात है कि यूटिलिटी स्टोर पर या आम बाज़ारों में जहां हमारी ख़वातीन, बहनें, बच्चियां जाती हैं, उनको लाइनों में खड़ा करके 2-2, 3-3 घंटे के बाद सिर्फ 1 केजी घी के लिए वो सारा दिन अपना ज़ाया कर रही हैं। और आने वाले दिनों में जब रमज़ान शरीफ और धूप की गर्मी होगी तो उसमें क्या इससे लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। जनरल सेक्रेटरी सिटी क्लॉथ बोर्ड अब्बास हैदर शेख ने कहा कि माह रमजान में दुकानदारों से भी अपील है कि मुनाफा की शरह को कम रखें और आवाम के लिए रिलीफ दें। अपने दुकानदार भाइयों से ये गुजारिश करूंगा कि ये नहायत ही मुकद्दस महीना है, इसमें मुनाफाखोरी से ख़ास तौर पर परहेज़ की जाए, आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है रमज़ानुल मुबारक में फ़ैज़ व बरक़ात हासिल कर सकें। इजलास में कपड़ा मार्केटों के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई, जिस पर सिटी क्लॉथ बोर्ड के सदर और सेक्रेटरी ने इंतजामिया तक मसाइल पहुँचाकर इनके हल की यकीन दहानी भी करवाई। कैमरामैन मुजाहिद अली के साथ फजील अहमद, फैसलाबाद। टैक्स गुजारों के लिए अच्छी खबर है। अशिया और खिदमात पर टैक्स सेल्स टैक्स के लिए गोशवारा मुतारिफ करवाया जाएगा। FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की जानिब से सेल्स टैक्स का एक ही गोशवारा जारी किया जाएगा। टैक्स गुजारों को अब FBR और पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को अलग अलग गोशवारे जमा नहीं करवाना पड़ेंगे। अशिया और खिदमात पर सेल्स टैक्स एक ही गोशवारे पर जमा हो सकेगा। अशिया पर सेल्स टैक्स FBR वसूल करता है, जबकि खिदमात पर सेल्स टैक्स सूबाई सतह पर PRA वसूल करती है। टैक्स गुजारों को इससे कबल दोनों महकमों को अलग रिटर्न जमा करवाने पड़ते थे। शोरकोट में मिट्टी का तेल नायाब हो गया। पेंट का काम करने वाले दुकानदार परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत की नाकिस पॉलिसी की वजह से मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा। मिट्टी का तेल न मिलने पर पेंट का काम करने वाले दुकानदार परेशानी का शिकार हो गए हैं। 2 हफ्ते से ज़ायद का वक्त गुजर गया मगर तेल कहीं से नहीं मिल रहा। दुकानदारों का कहना है कि हुकूमत की नाकिस पॉलिसी के बायस पैसे होने के बावजूद तेल नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से पेंट समेत दीगर कामों में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानदारों ने हुकाम से तेल के नायाब होने पर नोटिस लेने का मुतालबा किया है। और चंद रोज कबल हड़ताल के ऐलान से LPG एसोसिएशन फैसलाबाद ने लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। सदर LPG एसोसिएशन ने कहा कि यकम रमजान से दुकानें बंद नहीं करेंगे। LPG रजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एसोसिएशन का हंगामी इजलास गुलाम मोहम्मद आबाद में मुनक्कद हुआ, जिसमें सदर एसोसिएशन शाहिद जावेद, चेयरमैन मियां मोहम्मद आमिर और दीगर मेंबरान ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि एहतजाज की कॉल बेबुनियाद है। एसोसिएशन इस कॉल से लाताल्लुकी का इजहार करती है। मियां आमिर ने कहा कि कोई भी LPG डिस्ट्रीब्यूटर अपनी दुकान या कारोबार बंद नहीं करेगा, जबकि LPG की सप्लाई बिला ताअत्तुल जारी रहेगी।
जंग में रवां साल चने की पैदावारी रकबे में 27,000 एकड़ की कमी आ गई। बारिशें ना होने से फी एकड़ पैदावार भी कम रही। रिपोर्ट करेंगे उवैस खान। रवां साल चने के ज़ेर काश्त रकबे में बड़े पैमाने पर कमी आई। महकमे शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता सीजन में चने का पैदावारी रकबा 2,36,000 एकड़ था, जबकि रवां साल चने के पैदावारी रकबे में 27,000 एकड़ की कमी आई। रवां साल सिर्फ 2,09,000 एकड़ पर ही चने की काश्त हो सकी। बारिशें कम होने के बायस फी एकड़ पैदावार भी मुतासिर हुई। महकमे ज़राअत के मुताबिक बेशतर काश्तकारों ने रवां साल थल के इलाके में गंदुम और चारे की फसलात को काश्त करने में फोकियत थी। मंडी में पैदावार की कमी के बायस कीमतों में इजाफे की तवक्की की जा रही है, जबकि दीगर अजला में फराहमी भी मुतासिर होगी। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून व इंसाफ MNA रियाज फतियाना ने नवाही इलाका 713 और 714 गाफवे में सुई गैस और बिजली की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। इलाका मकीनों की जानिब से इस्तकबाल किया गया। रिजवान खान की ये रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन कायमा कमेटी कानून और इंसाफ MNA रियाज फतियाना ने 713 गाहवे और 714 गाहवे में सुई गैस और बिजली की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। MNA का गाँव पहुँचने पर चौधरी फरमान गुज्जर समेत इलाका मकीनों ने शानदार इस्तकबाल किया। रियाज फतियाना कहते हैं कि देही इलाकों में तमाम सहूलियात फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। हुकूमत की ये कोशिश है कि हम आवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए हर मुमकिन अपने वसाइल को बुरुए कार लाएं। MNA रियाज फतियाना का कहना था कि ज़ात बरादरी की तफरीक के अलावा तमाम वसाइल बुरुए कार लाते हुए सहूलियात फराहम की जा रही हैं। अवाम का मेयार ज़िंदगी बुलंद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत जल्द नवाही इलाका 714 गाहवे में खिलाड़ियों के लिए ग्राउंड बनाया जाएगा। सब लोगों को हम गैस की जरूरत फराहम कर रहे हैं, हत्ता कि बिला तफरीक किसी पार्टी बिरादरीज़म से हटकर तमाम गाँवों के बाशिंदों को इसने वोट दिए हैं या नहीं दिए, हम सबको गैस दे रहे हैं। इसके अलावा 2 आबादियों की बिजली का इफ्ताह भी हुआ है। इलाका मकीनों ने सुई गैस और बिजली की फराहमी पर MNA रियाज फतियाना का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन जवाद मलिक के साथ रिजवान खान, सिटी 41 कमालिया। शोरकोट में विफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी MNA साहबजादा अमीर सुल्तान का रफीकी शहीद ट्रस्ट अस्पताल का दौरा। चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड सैयद गोहरुल हसन शाह, सेक्रेटरी चौधरी साजिद अशरफ गुज्जर, MPA मियाँ आसिफ काठिया, मियाँ हाकिम काठिया, मियाँ हैदर काठिया, चौधरी जाहिद और चौधरी यासीन भी वहां पर मौजूद थे। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अस्मा बुखारी के हमरा मियाँ इरफान मनान की तलाल चौधरी के घर आमद, साबिक MNA की वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत की। मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अस्मा बुखारी के हमरा मियाँ इरफान मनान की तलाल चौधरी के घर आमद। सिटी 41 से खुसूसी गुफ्तगू में अस्मा बुखारी का कहना था कि तलाल चौधरी के घर उनकी वालिदा के इंतकाल के अफसोस के लिए आई थी। दसका इलेक्शन पर उनका कहना था कि PTI की विकेट नहीं पिच ही उखाड़ दी है। वजीर आजम के मुताबिक तो मुल्क नहीं महंगाई नहीं है, जबकि आम आदमी महंगाई से ही तंग है, लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। राना मोहम्मद नवीद को चेयरमैन फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन मुंतखब होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। राना मोहम्मद नवीद कहते हैं कि एसोसिएशन के दीगर ओहदों का भी जल्द ऐलान किया जाएगा। फ्रेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का चेयरमैन मुंतखब होने पर राना मोहम्मद नवीद को समाजी और कारोबारी शख्सियात की जानिब से मुबारकबाद का सिलसिला जारी है।